Hello, I welcome in lecture number 2 on time division switching. In first lecture we discussed about basic concept related to time division switching, what is time division switching and why we go for time division switching over space division switching. And in that case we discussed that in space division switching, for a call entire space, that means entire switch is dedicated for the call duration. But in time division switching, the difference is that we transmit discretized signal. That means we send signal in the form of samples. That means when we send signal in the form of samples like this, then there will be time duration between two samples, and between these two samples we can send samples of other subscribers. And in this way we discuss that by using a single communication link, n number of subscriber can communicate their call. And the procedure was that suppose calling subscriber 1 is initiating its call, then its first sample will be sent to the call subscriber, but after 125 microsecond the second sample is to be sent. Then in between, in the 125 microsecond, n number of subscriber can send their call through the same communication link. In that way there was a type of communication setup in that the input and inlet and outlet switching mechanism were controlled cyclically. And in that part it was seen that the subscriber 1 can send its samples to subscriber 1 at the call outlet, and subscriber inlet 2 can only send its sample to outlet 2, and that means there is no flexibility between the subscribers. That means subscriber 1 can only send its samples to subscriber 1. It cannot send its samples to other subscribers at the outlet side. For that we discussed that there will be type of control address that will control the connection at the output side. That means the inlet has to provide address of that particular outlet to which it is to communicate. So the address provided by the subscriber will be stored in the memory of control memory, and from there that particular address will be fetched by the processor, and then accordingly call of the outlet will be set up. For example, if subscriber number, that is inlet 1, wants to communicate with subscriber 4 at the outlet, so in the first address register of the control memory, inlet 1 will provide the address of outlet 4. So the control memory will read from here that this particular subscriber has to communicate with subscriber number 4 at the outlet. Then this control memory will connect the call of inlet 1 to the outlet 4, and in this way accordingly as per the address provided by the inlet in the control memory address, the call will be set up. So the availability of the call setup could be possible, and this type of mechanism was called in input driven. And then similarly, if inlets are controlled by controlling
memory, then it will be called output control. And in both of the cases, input control and output control, in both of the cases the drawback was that in input driven, all the inputs are to be scanned by the cyclic control switch. That means whether the subscriber, that means inlet is active to call or not, its connection will be set up by for a while to get its sample as per the cyclic control. And similarly in output driven system also, all the outlet subscriber will be scanned to set up the call. कहने का मतलब कि सारे सब्सक्राइबर को स्कैन करना टू सेटअप द कॉल इज नॉट प्रॉपर वे to use properly the available switching capacity. We should connect only those subscriber who are acting for the call. That means both sides will be controlled on the basis of the initiation of the call, and for that case both sides should be memory controlled. That means it should be controlled by control memory. On that point the lecture was concluded, and now we proceed for the general type of communication setup, time division communication setup. In that both the inlets and outlets are controlled by control memory on the basis of address provided by the inlets and outlets. But before that, let's some brief discussion on the switching capacity of the input or output driven time division switching system. So in any mechanism, all subscriber are to be connected in this particular 125 microsecond. If it is input driven, that means in 125 microsecond, all the subscriber should be all the inlets should be scanned by the switch, and the time should be provided to send their sample one by one, and all should be done in the 125 microsecond. And in this process, what are the mechanism, what are the steps to be followed? The first one, that is time to read the control memory. First thing, that means when the a particular inlet is scanned by the switch, that means if a particular inlet is connected to the exchange, first of all that inlet will provide, or that outlet will provide, if it is output driven. I am taking example of inlet driven. If a particular inlet is connected by the cyclic control switch, then that inlet should provide the address of that particular outlet to which it wants to communicate. So there will be a requirement of time to read that control memory, to read that address, and then time to decode address and select the inlet and outlet. If it is input driven or inlet driven, so after reading the control memory, that address will be decoded, and then that particular outlet will be selected. That will require time, and that is mentioned at TD. First one is mentioned at TM, and then time to increment the module and counter. And there is a counter associated with cyclic counter that counts which particular inlet is going to be connected. For that purpose, there should be an increment in the modulo and counter, so that system can investigate which inlet is going to be connected in next step. And the next time required is time to transfer the sample. After
getting connected or getting connection between inlet and outlet, there will be time required to transfer the sample from inlet to outlet. So all these four types of times are required in the call setup between inlet and outlet in input driven or output driven time division switching system. So the number of subscriber that can be connected will be dependent on the time required to set up the call, and that will be definitely equal to 125 microsecond, because it will be completed in 125 microsecond time. And then it will be C by 125 microsecond by Ti, Tm, Td plus Tt, and definitely in numerical part we will solve the numerical on the basis of this. Now we'll start discussion on the general type of our time division space switching system. Time division space switching system means time division. Why we are saying time division? Because samples or data are coming from the inlets on the basis of time slots. That's why it is called time division. That means first sample of first inlet is coming at some particular time, suppose T1, then after 125 microsecond of time its second sample will be transmitted towards this. So that means time slots, यानी that means यहाँ पर प्रोसेस टाइम डिवाइडेड है, टाइम सबके लिए डिवाइडेड है. टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस स्विचिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस स्विचिंग. टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो रहा है, यानी टाइम डिवीजन के बेसिस पे मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं. मल्टीप्लेक्स किसको कर रहे हैं? तो स्पेस को स्विच कर रहे हैं हम लोग. एक ही स्पेस है. स्पेस मतलब एक कम्युनिकेशन पाथ, एक एक्सचेंज, एक सिस्टम जिसको हम कॉल सेटअप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. उस एक को यूज़ करने के लिए, उस एक को यूज़ करने के लिए हम टाइम के बेसिस पे मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं. यानी हम कर रहे हैं स्पेस स्विचिंग, यानी सर्किट स्विचिंग कर रहे हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. That's why it is called time division space switching, time division multiplexing space switching. तो इस केस में हम लोगों ने दो तरीके के डिस्कस किए थे, इनपुट ड्राइवन एंड आउटपुट ड्राइवन. और अब ये उसके कुछ हमने ड्रॉबैक्स देखे. तब यहाँ पर हमारा ये कंक्लूजन ये है कि बोथ इनलेट्स एंड आउटलेट्स बोथ शुड बी कंट्रोल्ड बाय सम मेमोरी, दैट इज कंट्रोल मेमोरी. तो यहाँ से क्या होगा? Inlet that is going to initiate a call will only be selected by the selector. All subscriber will not be scanned by the cyclic controller. Only those inlets who are initiating call will only be connected to the control memory, and that particular inlet will provide address of the outlet to which it is going to communicate its call will be saved in its memory. And then in next step the processor will read that particular address and it will connect the call between that particular inlet and outlet. For example, suppose at some particular moment of time subscriber number 3 is initiating call. That means when it is initiating call, it will be connected to the exchange.
and then that means it will be connected to, that means it will provide the address of that particular subscriber to which it is going to connect its call. Suppose subscriber number 3 or inlet number 3 wants to communicate with subscriber number 1 or the outlet. That means this 3 is providing address of outlet 1. So this control memory in the next step will provide the switch connection between inlet 3 and outlet 1, and in that process this call will be completed between subscriber 3 and subscriber 1. So we can see two things are now added. First one कि हम उन सब्सक्राइबर को ही केवल यहाँ पे स्कैन आउट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं जिनका जो कॉल सेटअप कर रहे हैं. तो 125 माइक्रोसेकंड के अंदर हम उन सब्सक्राइबर को कनेक्ट करेंगे जो ये रियली कॉल स्टार्ट कर रहे हैं. हम सारे सब्सक्राइबर को यहाँ पर कॉल इनिशिएशन के लिए स्क्रीन आउट नहीं कर रहे हैं. और यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये सब्सक्राइबर व्हाट एवर बी द सब्सक्राइबर को विच एवर बी द सब्सक्राइबर, कोई भी सब्सक्राइबर है कैन कम्युनिकेट विथ एनी सब्सक्राइबर एट द आउटलेट. ये दोनों फैसिलिटीज़ के साथ हमारे पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम है टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि वाई वी कॉल इट, वो एक कंप्लीट टाइप ऑफ हमारे पास टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग मिल गया और इसके थ्रू हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकते हैं. और देन यहाँ पर एक ही बात अब ये बचती है कि अब ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू बस, दिस इज़ एनालॉग. मीन्स यहाँ पर हमारी जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, दैट इज़ एनालॉग सिग्नल. मीन्स सैम्पल्स ऑफ द इनपुट सिग्नल. दैट मीन्स PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के फॉर्म में जो हमारी सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही है. तो अब यहाँ पर जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के ओवर एनालॉग कम्युनिकेशन के, वो सारे रिफ्लेक्ट होंगे इन द टर्म ऑफ नॉइज इफेक्ट, इन द टर्म ऑफ द सिस्टम यूज्ड फॉर दिस. बिकॉज अगर हम एनालॉग की जगह डिजिटल यूज़ करते तो दैट पर्टिकुलर डाटा कैन बी स्टोर्ड ईजीली. और अगर हम उस पर्टिकुलर सैंपल को डिटेक्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो जो डिजिटल सिग्नल है उसको हम ईज़िली डिटेक्ट आउट कर सकते हैं विथ कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल. उसके अलावा जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनालॉग सिग्नल PAM सैंपल्स के रूप में आ रहे हैं उनको हम कहीं पे स्टोर नहीं कर सकते फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग, फॉर फ्यूचर एनालिसिस ऑफ द कॉलिंग मैकेनिज़्म. जबकि डिजिटल अगर होता, यानी कि ये जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में जाता, तो उसको हम आज के सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसको प्रोसेसर की हेल्प से इजीली स्टोर करके प्रोसेस कर सकते थे, बहुत सारे डिसीजंस ले सकते थे. तो एट दैट टाइम दिस फैसिलिटी वाज अवेलेबल and that's why this type of communication setup was initiated, and at that time it was a best solution. But after that there was a possibility of time division, time switching. Up till now we discussed about time division, space switching. Now we are going to proceed for the time division, time switching. That means what will be the difference, what are the changes? Changes are that in place of bus we are now going to use data memory.
Data memory means digital data will be stored in it, and definitely it indicates that inlets are going to provide their data, their information in the form of digital. That means the voice signal that we are using over here will be sampled, then quantized, then coded. That means a PCM type of data are available with the inlets. But most of the data available with the subscribers are available serially. But most of the storage memory store their data in parallel form. So definitely after switching the signal from inlet towards the data memory, there should be a converter of data from serial to parallel form, and in that way on the output side also, when data is about to be connected to outer world, that means outlets, the data should be in serial form. So at the output of data memory there should be a system that can convert parallel data into serial data. So these are some changes that are executed when we plan for time division space switching. Time division, time switching. Time division means time division multiplexing is used in this case also, means samples from the inlets are coming, but these samples are now digitized or coming to the exchange, and again the same thing, and sample and subscriber has to send their first sample in time of 125 microsecond. The difference is only that these samples are now in digital form, only this difference. So the process is that, again as we discussed in the time division space switching, inlet is going to initiate call to the called subscriber. It sends its data by using time division multiplexing and sending its data to the output subscriber. But here in this case there is no space or switch that is going to be connected between inlet and outlet directly. Here only data are transferred from one memory to other, memory to memory, and on. That will discuss now how it proceed. So if we सी इन सिंपलर वे, एक सिंपल वे में अगर इसको हम देखने की कोशिश करें तो स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं. फर्स्ट स्टेप ये होगा, अगर हम विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकलिटी, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल एनालिसिस, अगर हम इन ब्रीफ आगे स्टार्ट करने से पहले इस बात पे हम सोचने की केवल कोशिश करें, मंथन करें कि व्हाट कैन बी स्टेप्स. तो एक लेमैन लेवल पर जाकर हम सोचें तो हम ये सोच सकते हैं कि कॉल कैसे सेटअप होगी. तो फर्स्ट थिंग ये होगा कि जो भी इनलेट है, जो भी कॉलिंग सब्सक्राइबर है, वो सबसे पहले जब कॉल करेगा तो वो जिसको भी जो भी एक्सचेंज के थ्रू कर रहा है, बिकॉज इनलेट और आउटलेट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, हम सब जानते हैं. ऑल कम्युनिकेशन इज थ्रू सम स्विचिंग सिस्टम, एक एक्सचेंज के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है. तो पहला जो कॉलिंग सब्सक्राइबर कॉल का सेटअप करना शुरू करेगा
तो सबसे पहली बात ये होगी कि जब वो एक्सचेंज से अपने आप को कनेक्ट करेगा तो दो इन्फॉर्मेशन तो उसे देना ही देना है। आफ्टर एक्नॉलेज की उसका कनेक्शन एक्सचेंज से हो गया है, जब एक्सचेंज से वो एक्नॉलेज हो गया कि नाउ इट इज़ कनेक्टेड टू एक्सचेंज और एक्सचेंज उसके डेटा को रिसीव करने को तैयार है, इसका एक पूरा मैकेनिज़्म है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस में। तो वंस इसको इस बात में बोलें कि वंस इनलेट इज़ कनेक्टेड टू द एक्सचेंज, वहाँ से स्टेप्स क्या स्टार्ट होंगे। पहला स्टेप ये स्टार्ट होगा कि सबसे पहले जो कॉलिंग सब्सक्राइबर है उसे एक्सचेंज को ये बताना होगा कि मैं कौन से सब्सक्राइबर से कनेक्ट होना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग, यानी कौन से का मतलब उसका एड्रेस देगा। एंड देन दूसरी बात क्या होगी, वो अपना डेटा जो डेटा मेमोरी है उसमें स्टोर कर देगा। दो बात है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक्सचेंज आपसे डेटा नहीं ले रहा था। जब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग स्पेस स्विचिंग की बात हो रही थी तो वहाँ पर क्या था कि आपका जो एनालॉग डेटा था एक्सचेंज में कहीं भी स्टोर नहीं हो रहा था। जो बस था वो सिंपली आपके इनलेट और जो रिक्वायर्ड आउटलेट है उनके बीच स्विच को कनेक्ट कर दे रहा था एंड थ्रू दैट स्विच आपका एनालॉग डेटा आउटलेट को ट्रांसफ़र हो जाता था। यहाँ कोई डायरेक्ट स्विच कनेक्शन नहीं हो रहा है इनलेट और आउटलेट में। आप इस तरह से कर रहे हैं, आप इस तरह से मैकेनिज़्म समझ लीजिए कि इनलेट यानी कॉलिंग सब्सक्राइबर ने अपना कोडेड डेटा, डिजिटल डेटा किसी एक मेमोरी के लोकेशन में ले जा कर के सेव कर दिया। अब ये भी बता दिया कि मेरा ये जो डेटा है जो मैंने स्टोर किया है वो कौन से सब्सक्राइबर को जाना है, उसका एड्रेस दे दिया। अब जो मैकेनिज़्म है, जो सिस्टम है, जो कंट्रोलिंग पार्ट है, वो क्या किया, आपके कंट्रोल मेमोरी से, यहाँ पे एक और बात हम लोग डिस्कस कर लें कि इस पर्टिकुलर मैकेनिज़्म में दो मेमोरी है, एक डेटा मेमोरी है और एक कंट्रोल मेमोरी है। डेटा मेमोरी यहाँ यूज़ की जा रही है कि इनलेट अपना जो डेटा आगे ट्रांसफ़र करना चाहता है वो वहाँ पर सेव करेगा, और कंट्रोल मेमोरी यानी कंट्रोल करने वाली मेमोरी, वहाँ पे उन आउटलेट्स का एड्रेस इनलेट सेव करेगा जिससे वो कम्युनिकेट करना चाहता है, जिसको अपना डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो आपने क्या किया, बड़ी वेरी सिंपल, आपने अपना डेटा एक जगह स्टोर कर दिया और अगले को बता दिया कि मेरा ये डेटा इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है। तो जो मैकेनिज़्म है, जो कंट्रोलिंग पार्ट है, वो क्या करेगा, जो आपने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर आपने जहाँ पे डाटा स्टोर किया है उस डेटा को रीड करेगा और उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुँचा देगा। यही पूरा प्रोसेस होना है इसके अंदर। अब इसमें दो तीन बातें इनिशियली हमें समझ लेनी है और मान के चल लेनी है कि थ्रू आउट द कॉलिंग प्रोसेस ये सारे जो इनलेट्स हैं और जो आउटलेट्स हैं वो साइक्लिक कंट्रोल मैकेनिज़्म द्वारा वन बाय वन स्क्रीन होते रहेंगे और कनेक्ट होते रहेंगे, जैसे हम लोगों ने स्पेस डिवीज़न स्विचिंग में अभी टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग में डिस्कस किया। यानी कि जैसे यहाँ पर ये मान लिया जाए कि ये इनलेट्स हैं और यहाँ पर एक मैकेनिज़्म ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ आगे पाथ एक ही है तो ये साइक्लिकली यहाँ पर एक स्विच चलता रहेगा, 1 से कनेक्ट होगा, 2 से कनेक्ट होगा, 3 से होते हुए n तक ये 1 बाय 1 कनेक्ट करता हुआ जाएगा। और एक को कितना टाइम देगा, तो आपको पता है कि ये 1 से n तक का जो कनेक्शन है वो 125 माइक्रोसेकंड में पूरा हो लेना है। तो अकॉर्डिंगली कितने नंबर ऑफ स्विचेज को वो 125 माइक्रोसेकंड में कंप्लीट कर लेगा, ये डिपेंड करेगा कि एक के कॉल को सेटअप करने में उसे कितना टाइम लग रहा है। यही प्रोसेस यहाँ भी चलता रहेगा आउटपुट साइड में साइक्लिकली। ये दो काम साइक्लिकली हो रहे हैं। तीसरा काम और भी हो रहा है कि ये जो कंट्रोल मेमोरी है
ये भी सीक्वेंस वे में ये भी रीड आउट होती रहेगी। तो यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। इनलेट एंड आउटलेट्स आर स्कैन्ड सीक्वेंशियली। अब हम आगे बढ़ने से पहले ये सोचें कि इस पूरे प्रोसेस में कितने तरीके से हम मैकेनिज़्म प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट इज दैट सीक्वेंशियल राइट एंड रैंडम रीड। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की है कि जब मैं राइट यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब डेटा मेमोरी में राइट से मतलब है। कौन राइट करेगा? जो इनलेट है, जो अपना डाटा ट्रांसमिट करना चाहता है, वो अपना डाटा यहाँ राइट करेगा, स्टोर करेगा। एंड रीड जो हम लोग यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं कि जब उस पर्टिकुलर डाटा मेमोरी से डेटा रीड किया जाएगा। कब रीड किया जाएगा? जब उसे आउटलेट पे ट्रांसफ़र करना है। वेरी सिंपल। तो इस केस में हम लोग देखें तो दो मैकेनिज़्म पहले हम देख लें। एक मैकेनिज़्म ये है कि सीक्वेंशियल राइट एंड रैंडम रीड कर सकते हैं 3 तरीके से, लेकिन हम पहले भी 2 पे फोकस करें। पहला क्या हो सकता है कि सीक्वेंशियल राइट, यानी कि जो इनपुट आ रहा है, इनलेट आ रहा है, वो इस डेटा मेमोरी में 1 बाय 1 फर्स्ट एड्रेस में फर्स्ट इनलेट का आ गया, सेकेंड एड्रेस में सेकेंड इनलेट का आ गया, थर्ड में थर्ड का आ गया, एंड सो ऑन nth में nth का डाटा स्टोर हो गया। कुछ इस तरीके से, अगर मैं इस फिगर का हेल्प लूँ तो कुछ इस तरीके से ये जस्ट अ मिनट सीक्वेंशियल राइटिंग। यहाँ पे क्या किया हमने I1, ये I1, I2, I3, I4 ये जितने भी इनलेट्स हैं वो इस डेटा मेमोरी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड nth पे इनके डेटा स्टोर हो गए। तो यहाँ क्या है, सीक्वेंशियल राइटिंग का मतलब कि हर एक इनलेट 1 to 1 कनेक्टेड है यहाँ पर डाटा मेमोरी से, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेटअप में। यानी इनलेट 1 का डेटा मेमोरी के फर्स्ट एड्रेस पे जाएगा, इनलेट 2 का सेकंड पे जाएगा, एंड थर्ड, एंड लास्ट एंड का एंड पे जाएगा। अब पॉइंट क्या है कि ये इनलेट एक तरफ तो अपना डेटा सीक्वेंशियली स्टोर कर दिया डेटा मेमोरी में, दूसरी तरफ वो क्या करेगा, एक एड्रेस प्रोवाइड करेगा कंट्रोल मेमोरी को। कंट्रोल मेमोरी को जो एड्रेस प्रोवाइड करेगा, वो एड्रेस प्रोवाइड करेगा कि वो कौन से आउटलेट से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो इस कंट्रोल मेमोरी के एड्रेस 1 से कनेक्टेड होगा आउटलेट 1, एड्रेस यानी मेमोरी स्पेस फर्स्ट जो होगा उससे कनेक्टेड होगा आउटलेट 1, मेमोरी स्पेस सेकंड से कनेक्टेड होगा आउटलेट 2, मेमोरी स्पेस थर्ड से कनेक्टेड होगा आउटलेट 3, एंड सो ऑन। इसी तरह से n तक कनेक्टेड होगा। तो जो इनलेट है वो मान लीजिए जो भी एड्रेस देना चाहता है वो, यानी कि इनलेट उस पर्टिकुलर जिससे भी कम्युनिकेट करना चाहता है उस पर्टिकुलर एड्रेस को यहाँ पर ला करके सेव कर देगा। जैसे कि हम इस फिगर की हेल्प ले सकते हैं कि मान लीजिए कि फर्स्ट एड्रेस पे क्या हो रहा है, फर्स्ट एड्रेस पे इनलेट 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आउटलेट 1 से कम्युनिकेट कौन करना चाह रहा है, I4 कम्युनिकेट करना चाह रहा है। I1 सेकंड पे लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इनलेट 1 आउटलेट 2 से कम्युनिकेट करना चाहता है। यानी कि फर्स्ट इनलेट जब वो स्क्रीन आउट हुआ साइक्लिक कंट्रोल स्विच से, वो कनेक्ट हुआ
कनेक्ट होने के बाद उसने अपना सबसे पहला तो जो उसका क्या कहते हैं डेटा है उसको फर्स्ट मेमोरी एड्रेस ऑफ डाटा मेमोरी में स्टोर किया, एंड देन उसने अपना जो एड्रेस है वो कहाँ पे प्लेस किया, सेकंड आउटलेट एड्रेस पर। आउटलेट जहाँ भी सेकंड आउटलेट जहाँ पे कनेक्टेड है वहाँ पे उसको प्लेस किया। दैट मीन्स ये I1 किससे कम्युनिकेट करना चाहता है, सेकंड से कम्युनिकेट करना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे प्रोसेस में ये है कि हम इसको दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज क्या है कि राइट एक्सेस टू द डाटा मेमोरी इन द फर्स्ट फेज, और वो सीक्वेंशियली हुआ। सेकेंड फेज क्या है, रीड एक्सेस इन द सेकेंड फेज रैंडमली, तो अब आगे डिस्कस करते हैं। अभी उसके पहले क्या है, कंट्रोल मेमोरी लोकेशन जो 1 2 3 n है कंटेन द एड्रेसेस ऑफ द इनलेट्स करेस्पॉन्डिंग टू द आउटलेट्स 1 2 3 n, यानी कि ये आउटलेट 1 2 3 जो हैं उनके ये कंट्रोल मेमोरी के एड्रेसेस के साथ 1 to 1 कम्युनिकेटेड हैं। यहाँ पर वो एड्रेस सेव किया गया जो इनलेट इन पर्टिकुलर से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो इनलेट 1 ने क्या किया, सबसे पहला फिर से मैं रिपीट करूं, अपना डेटा मेमोरी के फर्स्ट एड्रेस पे सेव किया, एंड जिस भी आउटलेट से कम्युनिकेट करना चाहता है उस आउटलेट पे अपना एड्रेस सेव कर दिया। जैसे कि अगर वो सेकंड नंबर से कम्युनिकेट करना चाहता है आउटलेट से, तो अपना एड्रेस कंट्रोल मेमोरी के सेकंड एड्रेस रजिस्टर में सेव कर दिया। अब आगे का जो मैकेनिज़्म होगा, जो कंट्रोल सिस्टम इसको कंट्रोल करेगा, वो क्या करेगा, सबसे पहला काम रीड करेगा कंट्रोल मेमोरी को। कंट्रोल मेमोरी में उसने रीड किया कि फर्स्ट जो आउटलेट है उसका डेटा कहाँ पर है, तो फर्स्ट आउटलेट से कम्युनिकेट करना चाहता है। इस पर्टिकुलर फिगर में देखें तो आउटलेट इनलेट नंबर 4, सेकंड आउटलेट से कम्युनिकेट करना चाहता है इनलेट नंबर 1, थर्ड आउटलेट से कम्युनिकेट करना चाहता है इनलेट नंबर 2। तो इस तरीके से अब जो कंट्रोल मैकेनिज़्म होगा, इस आउटलेट 1 से कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले जो डेटा उठाएगा वो मेमोरी नंबर डाटा मेमोरी के 4th पोजीशन से उठाएगा। यहाँ देखिए, यानी रीड ऑप्शन जो सबसे पहला होगा डेटा मेमोरी से, राइट ऑप्शन तो सीक्वेंशियली हो गया, लेकिन जो रीड ऑपरेशन होगा किसके द्वारा होगा, आउटलेट से कनेक्ट करने के लिए जब होगा तो सबसे पहला जो एड्रेस रीड किया जाएगा वो मेमोरी नंबर 4 से रीड किया जाएगा, क्योंकि आउटलेट 1 से कम्युनिकेट होने वाला, आउटलेट 1 से जो भी कम्युनिकेट करना चाहता है वो I4 है, यानी I4 का डेटा 4th नंबर के एड्रेस पे होगा। देन आउटलेट 2 इससे कम्युनिकेट करना चाहता है I1। इसका मतलब ये हुआ कि अब I1 कम्युनिकेट करना चाहता है, यानी कि दूसरा नंबर होगा कि फर्स्ट एड्रेस से I1 का डेटा ले लिया गया। तीसरे नंबर पे देखें तो आउटलेट 3 से कौन कम्युनिकेट करना चाहता है, I2, यानी तीसरे नंबर का जो रीड ऑपरेशन होगा वो सेकंड एड्रेस से होगा। ऐसे हम देखें कि जो nth आउटलेट है उससे कौन कम्युनिकेट करना चाहता है, तो I3 कम्युनिकेट करना चाहता है। तो सबसे लास्ट में इस प्रोसेस में जो डेटा रीड किया जाएगा वो थर्ड एड्रेस से रीड किया जाएगा। तो क्लियरली इसको हम देख सकते हैं कि दैट इज डाटा इज रिटन सीक्वेंशियली इन द डाटा मेमोरी, बट डाटा इज read from this data memory by the output side randomly। जैसे कि यहाँ पहले चौथा से उठाया, फिर पहले से उठाया डेटा, फिर दूसरे से उठाया, लाइक दिस। तो इस वजह से इस मैकेनिज़्म को जब यूज करके कॉल सेटअप करते हैं तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियली
writing and randomly reading. तो not making this lecture lengthy, मैं इस लेक्चर को यहाँ कंक्लूड करता हूँ एंड यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर में इस डिटेल को और डिटेलिंग के साथ डिस्कस करेंगे और इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.